Okay, so first question of today's is this one. Here ABC is an isosceles triangle. Now, how do we figure out that it's an isosceles triangle? By seeing these two marks on a line. Where there are similar marks, this means that the lines are equal. Okay, or otherwise these marks are on angles, then it means that angles are equal. Now let's see, this is an isosceles triangle. Now, what is the property of isosceles triangle? So, so this is the identity or a theorem. If sides are equal, then angle opposite to it are also equal. So let's see it. Now see, I have written all the figures that are given to us. Here, angle B equals to angle C, angle A equals to 50 degree, and angle C equals to, sorry, we have to find out angle C and angle B. So here we will use angle sum property of a triangle. So here you can see what we have used, angle sum property. Now 50 plus twice of angle C equals to 180 degree. Why is it so? Is it because angle A equals to 50 degree and twice of angle C because angle B equals to angle C. Now when we transpose 50 to the right hand side, when we transpose 50 to the right hand side, it becomes negative. So 180 minus 50, it gives 30, 130, and twice of angle C. And then when we solve it, we get angle C equals to 65 degree. Okay, and angle C equals to 65, angle B equals to 65, as you have seen, because angle B equals to angle C. See, now we are given with this question, angle A plus angle B equals to 65 degree, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 140 डिग्री. अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. एक ट्राइंगल में यहाँ पे अपन को ट्राइंगल का फिगर नहीं दिया है, खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. पर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल की. तो अगर कहीं पे भी 2 वेरिएबल आए, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, अभी ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा, ट्राइंगल में 3 आते हैं, 3 वेरिएबल आते हैं ABC. अगर कहीं पे भी जितने भी वेरिएबल आए, मान लीजिए 2 वेरिएबल आए हैं, तो वहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दी होंगी, करेक्ट. और यहाँ पे कितने, 3 वेरिएबल आए हैं ABC, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दी होंगी. लेकिन अभी तो अपन को 2 दी हैं, तो अपन को तीसरी खुद बनानी पड़ेगी. तो तीसरी इक्वेशन क्या होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी वाली, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब आप देखिए, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, इनमें एक कॉमन एलिमेंट है, वो है B. तो अपन क्या करते हैं कि B को ट्रांसपोज कर देते हैं और एंगल A और एंगल C की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो क्या करेंगे अपन, एक बार देख लीजिए. तो अब देखिए, अपने पास दोनों इक्वेशन की वैल्यू आ गई, एंगल A और एंगल C की वैल्यू आ गई, अपने पास 65 की आ गई और 140 की भी वैल्यू आ गई है. अच्छे से देखिए, ये 40 है, ठीक है, 140. तो अपने पास वैल्यू आ गई A और C की. अब अपन थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी की. अब देखिए, अपने पास थर्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब अपन वहाँ पे एंगल A और एंगल C की वैल्यू रखेंगे. एज यू कैन सी, we have closed the brackets in each term. We have replaced with angle A, we have replaced with 65 minus angle B, angle C we have replaced with 140 minus angle B. So now we can see here angle A, angle B, angle C, and we will solve this. We will open the brackets. Here are the plus sign, positive signs, so there will be no change in the signs inside the bracket. Okay, now 65 minus angle B plus angle B plus 140 minus angle B equals to 180 degree. Here angle B is negative, here angle B is positive, so we can cancel it out. Now what we are left with? Now you tell me, it will be like so or not. 205 minus angle B equals to 180 degree. Okay, सो यू कैन सी वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी. अब अपन को एंगल बी की वैल्यू मिल गई है, तो अपन ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी, ये वाली, ठीक है, तो अगर इसमें अपन एंगल बी की वैल्यू रखें,
तो अपन एंगल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट। और अगर यहाँ पे अपन एंगल बी की वैल्यू रखें तो अपन एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अपन को सबकी वैल्यू मिल जाएंगी। तो बहुत सिंपल था ये। सिर्फ आपको कुछ नहीं इतना याद रखना है, जब आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन। अब आप इक्वेशन बनाएं या फिर आपको मिली हों, वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन से। अगर दो वेरिएबल तो दो इक्वेशंस, ये चीज़ का ध्यान रखना है। सो हमें क्वेश्चन दिया है, ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। विच साइड इज स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ लार्जेस्ट। एंगल ए इक्वल्स 60, एंगल बी इक्वल्स टू 40। दिस इज़ अ ट्राइंगल, ओके। इन अ ट्राइंगल, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सबसे पहले काम होगा एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना। अब देखो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 60, एंगल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब अपने पास एक थ्योरम थी, side opposite to greater angle is larger and side opposite to smallest angle is smaller। तो 40 के ऑपोजिट है AC, मीन्स AC छोटी है सबसे, ठीक है। कंपैरिजन में तीनों से AC छोटी है और AB बड़ी है कंपैरिजन में सबसे, ओके। इस क्वेश्चन का यही आंसर था। भाई लोग, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इतने भी ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसके पूरे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो पूरे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। अब इस क्वेश्चन में ये है, देखिए मैंने अभी क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, एक बार आप लोग समझ लीजिए। ये क्वेश्चन 4 है, आपको क्वेश्चन 4 के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें यह है इस क्वेश्चन में कि अगर एक ट्राइंगल में किसी 2 एंगल का सम थर्ड एंगल के इक्वल है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही अपन को प्रूफ करना है। तो अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं और अज्यूम करते हैं जो कुछ अपन को बोला है। अगर अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यही दिया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। अब अपन को प्रूफ करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 दिया था। अब अपन ने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 3 मैंने क्यों कर दिया, डाउट आना चाहिए। डाउट यह है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 था जो एंगल 3 के इक्वल था, तो अपन ने रिप्लेस कर दी वैल्यू, ठीक है। एंगल 3 के इक्वल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब एंगल 3 ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। फिर जब 2 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, जब डिवाइड में आएगा तो एंगल 3 इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। और अपन को प्रूफ क्या करना था, एक एंगल 90, कहीं पे भी अपन को परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल प्रूफ करना है तो अपन को सिर्फ उस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए अपन ने क्या किया, 2 एंगल का सम किया। और 2 एंगल का सम कैसे आया अपने पास, एंगल 3 का, क्योंकि अपन को एक इक्वेशन गिवन थी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 गिवन था। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, ओके।